ہم نے تینوں تلاوتوں میں ایک خوشی کے متعلق سنا ہے. یعنی پہلی تلاوت اشعیا نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے اور وہ اشعیا کہتا ہے کہ خدا کا دن نزدیک ہے اس لیے شادمانی اور خوش رہو. پالوس رسول تسلنیکیوں کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں کہ خوش رہو. دوبارہ کہتا ہوں خوش رہو, دعا کرو اور خدا کا شکر بجا لاؤ. اور آج انجیل مقدس میں مقدس یوحنا اصطباغی جو ہے وہ ہمیں خدا کی خوشی کا پیغام دیتے ہیں. میرے عزیزو, جب ہم نے آمد کی تیسری موم بتی کو روشن کیا جو خوشی کی علامت ہے, تو آج ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں گے. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ کون سی خوشی ہم حاصل کر سکتے ہیں, کس خوشی کی ہمیں تلاش ہے اور کون سی خوشی ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے. خوشیاں بہت ساری ہوتی ہیں. عام زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دنیاوی خوشی بھی ہے, یعنی چیزوں کو حاصل کرنے کی. بعض اوقات ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, مختلف ایجادات ہیں, گیجٹس ہو سکتے ہیں, موٹر بائک ہو سکتی ہے, کار ہو سکتی ہے, گھر ہو سکتا ہے, یہ ساری خواہشات ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں تو شاید ہم خوش ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ دلی سکون ملتا ہے. تو یہ ہے ایک دنیاوی خوشی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی خوشی بھی ہے. حقیقی خوشی آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم حقیقی خوشی کا تجربہ کرتے ہیں. میرے دوستو, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی بھی ہے. وہ خوشی ہے مقدس متی کی انجیل کے مطابق 5ویں باب کے مطابق کہ جب لوگ تمہیں میرے نام کے سبب سے لعن طعن کریں گے, ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے, تم محارب ہوگے. خوش ہونا, شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. یہ بھی خوشی ہے. مقدس فرانسس آف اسیسی ان کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ خوشی کیا ہے, کامن خوشی کیا ہو سکتی ہے. سننے والی بات ہے, کامن خوشی کیا ہو سکتی ہے. تو وہ اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سی خوشی جو ہے وہ انسان کو کامل بناتی ہے, یعنی مضبوط بناتی ہے. کون سی خوشی ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا کہ جب ہم اپنی زندگی خدا کے راستے پر دے دیتے ہیں تو یہ بھی خوشی ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے, یہ بھی خوشی ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے. تو مقدس فرانسس کہا جی یہ بھی خوشی ہے. لیکن خوشی مضبوط کیسے ہمیں بناتی ہے, وہ کون سی خوشی ہے. مقدس فرانسس کہتے ہیں کہ سردی کی رات ہو, سردی کی رات ہو, میں اپنے گھر جاتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملنے کو, رات کو جا کر دروازہ نوک کرتا ہوں اور اندر سے مجھے آواز آتی ہے کہ سانو تانگ نہ کر, سانو تانگ نہ کر, سوتے ریسٹ کرنے میں. تو مقدس فرانسس کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے خوشی ہے. یہ بھی میرے لیے خوشی ہے کہ مجھے مضبوط کرتی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے, ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے, قبول نہیں کریں گے, خوش ہونا, شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. یہ بھی ایک خوشی کی علامت ہے. یہ بھی خوشی کا ایک حصہ ہے کہ جب ہمیں لعن طعن بھی کیا جاتا ہے, برا بھلا بھی کہا جاتا ہے, قبول نہیں کیا جاتا, تو وہ بھی ایک خوشی کی علامت ہے, مایوسی کی علامت نہیں ہے. ایمان کی مضبوطی کی یہ خوشی ہے کہ ہم خدا میں مضبوط ہیں. خدا نے مجھے مضبوطی عطا کی ہے. مضبوط ہونا بھی یہ خوشی ہے. کمزور ہونا خوشی نہیں ہے, گھبرائے رہنا خوشی نہیں ہے, پریشان ہوئے رہنا خوشی نہیں ہے کہ وقت برا آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی ہے تو سر سٹ کے بیٹھ جانا نہیں, بلکہ دکھوں کا بھی, مصیبتوں کا بھی, پریشانیوں کا بھی مقابلہ جو ہے وہ بہادری سے کرنا, یہ بھی ایک خوشی ہے. اور مقدس فرانسس یہ ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں آج کہ یہ بھی ایک خوشی کی علامت ہے. یہ بھی خوشی ہو سکتی ہے کہ جب ہم مصیبت میں بھی ہوں, جب ہم پر دکھ بھی آئے, ہم پر پریشانی بھی آئے, لیکن ہمارا توکل بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے کہ اس کا اجر ہمیں خدا دے گا. تو یہ بھی ایک خوشی ہے. لیکن آج کی انجیل مقدس میں خوشی کس طرح کی ہے. انجیل مقدس میں خوشی, مقدس یوحنا اصطباغی ہمیں کون سی خوشی دینا چاہتے ہیں. مقدس یوحنا اصطباغی اگر مختصر دیکھیں مقدس یوحنا اصطباغی کا کردار, تو وہ دراصل توبہ کی منادی کر رہے ہیں. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. توبہ کی منادی کر رہے ہیں. اور توبہ کی منادی کرنی کیوں پڑی,
करनी क्यों पड़ी? तौबा के लिए लोगों को राह पर लाने के लिए क्यों वादा किया गया? क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी खुदा की राह की तैयारी करवा रहा था, लोगों को तैयार कर रहा था। और मुकद्दस यूहन्ना ने ये तैयारी कोई हमें नहीं की। मुकद्दस यूहन्ना बियाबान में गया, खुदा का तजर्बा किया, खुदा के पाक रूह से वसासत पाई और यीशु के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। वो राह खुदा की राह तैयार कर रहा था, वो अपनी राह तैयार नहीं कर रहा था, अपनी राह नहीं तैयार कर रहा था, बल्कि वो तौबा की मुनादी इसलिए करवा रहा था ताकि लोग जो है खुदा की तरफ जो है वो रुक करें। और मुकद्दस यूहन्ना इस चीज की जो है वो तबलीग कर रहे थे, खुशखबरी लोगों को दे रहे थे कि आसमान की बादशाही नजदीक है, तौबा करो, खुदा की तरफ रजू लाओ, आसमान की बादशाही नजदीक है। और मुकद्दस यूहन्ना मुख्तसर हमें बयान करना चाहते हैं जिंदगी के मुतालिक। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी कह रहे हैं कि जिंदगी को सीरियस लेना सीख लें, जिंदगी को सीरियस लेना सीखें। जिंदगी मुख्तसर है, जिंदगी शॉर्ट है, इसका एक भी जो लम्हा है वो खुदा की तरफ से बरकत है। एक भी लम्हा, एक भी सांस जो है वो खुदा की तरफ से बरकत है। इसको बरकत समझे कि खुदा ने मुझ पर करम किया, मुझे जिंदगी की भरपूरी दी है, ये मुझ पर करम हुआ है, तो इसीलिए उस करम को जाया ना करें, उस करम को जाया ना करें, क्योंकि ये सांसें जो मुझे अता की गई हैं, जो मैं ले रहा हूं, ये खुदा की तरफ से मुझे पर बरकत नाज़िल हुई है और खुदा ने मुझे बरकत दी है। तो इसीलिए ये सांसें जो हैं ये खुदा का तोहफा है मेरे लिए, तो इसलिए इसको जाया ना करें, इनको जाया ना करें। जाया किस तरह के, जब हम खुदा ने हमें खलक किया, खुदा ने बनाया है, खुदा ने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है ताकि हम खुदा की खुदाई को पहचान सकें। और जब हम राह रास्त से हटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो यकीनन हम अपनी जिंदगी के लम्हात को जो है वो जाया करना शुरू कर देते हैं। तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हमें आम लफ्जों में बयान करना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को जाया ना करो, क्योंकि जो जिंदगी एक दफा चली गई, जो लम्हे चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। घड़ी की मिसाल हमारे सामने, अभी टाइम जो है लेट्स से कुछ 8:30 हो गया, लेकिन दोबारा 8:30 नहीं होंगे। ये कल हो सकती है, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह जो जिंदगी के लम्हात चले गए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अपनी जिंदगी पर गौर करो। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे हमें एक सुकून भी मिलेगा और हमारे लिए वो खुशी कामत भी हो जाएगी जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी एक खुदा के कलाम की प्रचार कर रहे थे, खुदा की राह को तैयार कर रहे थे। और क्या होता है कि जैसे ही खुदा की राह को तैयार कर रहे थे, यरूशलेम से फकीर फरीसियों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया कि वहां से काहिन और लावियों को जो है वो तस्दीक के लिए भेजा कि ये जो तौबा की मुनादी कर रहा है ये दरअसल है कौन है, पता तो चले कौन है। अगर सानू कोई सवाल पूछे कि ऐसी कौन है तो की जवाब देंगे, की देंगे ते घबराए का तो दे रहे, परेशानी ना का तो दे रहे, परेशानी मतलब जवाब साडा इंज निकलना चाहिए। चलो फिर सवाल पूछ रहे असी कौन है, बस मजा नहीं हुआ, खुशी कोई लाग नहीं रही, खुशी नहीं लग रही। असी कौन है, ये हमारी ईमान की गवाही है, ये साडे ईमान की गवाही है। जो असी कबूल करने ना कि मैं मसीह हूं, मैं इसका मतलब है कि अपने ईमान की गवाही दे रहा हूं। मैं किसकी, यीशु की गवाही दे रहा हूं। मैं अपने आप को बयान नहीं कर रहा बल्कि मैं किसको बयान कर रहा हूं, यीशु को बयान कर रहा हूं। ये शहादत है, एक ये शहादत है, मसीह होना एक शहादत है, यीशु मसीह की ये गवाही है। और मैं अपने आप को नहीं बयान कर रहा कि ये मैं मसीह हूं, बल्कि मैं मसीह को बयान कर रहा हूं कि मसीह मुझ में है। पौलुस रसूल नहीं कहता कि जिंदगी तो मेरे लिए मसीह है, मौत मेरे लिए नफा, क्योंकि वो मसीह को बयान करता रहा, मसीह का सिपाही बना। तो उसकी खुशी उसमें थी कि मेरे अंदर जिंदगी मसीह की है। तो मुकद्दस यूहन्ना से भी जब सवाल किया गया कि तू कौन है, क्या तू अल मसीह है, उसने इकरार कर किया और इनकार किया। इकरार मतलब इस चीज का किया कि वो जो है वो है, वो यूहन्ना इस्तबागी है, तो इससे मुराद वो यूहन्ना इस्तबागी है। पूछा क्या कि आप तो अल मसीह, उसने कहा मैं अल मसीह नहीं हूं, मैं अल मसीह नहीं हूं।
फिर पूछा गया क्या तू इलियास है? उसने कहा मैं इलियास भी नहीं हूँ। या नबियों में से? उसने कहा मैं नबियों में से कोई नहीं। हालांकि मुकद्दस यूहन्ना नबी, उसको लोग नबी मानते थे क्योंकि बियाबान में खुदा के साथ उसका रिश्ता था, उसके शागिर्द थे, लेकिन वो इनकार करता है। वो कहता है मैं अल मसीह नहीं, मैं इलियास हूँ। और ये तस्दीक करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहूदी कुछ जो थे वो खुदा यीशु मसीह के मुंतज़र थे, इसलिए उन्होंने काहिनों को और लावियों को भेजा। काहिन क्योंकि पढ़े लिखे, खुदा की शरीयत को जानने वाले, चर्च में कुर्बानियां गुजराते, लोगों के लिए दुआएं करते, और खास तौर पर जो रोया होती थी उनकी जो है वो उनकी तफसीर भी करते थे। ये काहिनों का काम था एक पुराने ज़माने में। और जो लावी थे, लावी खादमान यानी चर्च के हैकल के खादम थे, यानी जो बाकी जितने भी काम थे वो ये लावी करते थे। तो इसीलिए क्योंकि ये जानते थे और इन्होंने मूसा की शरीयत को भी जाना पड़ा भी था, और मूसा की शरीयत के मुताबिक ये था कि तुम ही में से कोई, तशरीह शरअ के मुताबिक तुम ही में से कोई जो है वो आएगा और निजात का वसीला बनेगा, लोगों को खुदा के नजदीक लेकर आए, यीशु के लिए लोगों को तैयार करे। तो शायद उसकी खुशी इसी में थी, ये उसकी खुशी थी। लेकिन इससे बढ़कर भी उसकी खुशी क्या हो सकती है कि जब वो अपने ही शागिर्दों को बता रहा है कि देखो वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाना चाहता है। ये उससे बढ़कर उसकी खुशी थी कि वो एक तो राह तैयार कर रहा था यीशु की, और फिर क्योंकि नबी होते हुए वो जो है खुदा के मुतल्लिक बयान कर रहा है कि देखो वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उसकी राह तैयार करने के लिए आया। तो ये उसके लिए ये दामी खुशी थी, उसके लिए ये खुशी थी कि वो यीशु के लिए लोगों को तैयार करे ताकि लोग जो है वो यीशु के मुंतज़र रहे। इसके साथ साथ जैसे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी खुदा की राह को तैयार करवा रहे हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नज़दीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने समझ लिया, उन्होंने अपनी जिंदगियों को जांच लिया कि अब हमें तौबा की जरूरत है, अब हमें तौबा की जरूरत है, क्योंकि हमने अपना आप खुदा को पेश करना, हम खुदा के पास कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। तो बहुत सारे गुनाहगार भी लोग थे, सिपाही भी थे, मसूल लेने वाले भी थे, उनमें से जो है वो गुनाहगार जो थे वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी से भी सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें, हमने तौबा की है, खुदा की तरफ रुजू करने को तैयार है, हमने करना क्या है। तो मुकद्दस यूहन्ना उनके लिए सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उनकी तरबियत भी करते हैं, उनकी तरबियत भी करते हैं कि उन्हें बयान करते हैं कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक कुर्ता उसे दे दे जिसके पास नहीं है, जिसके पास 2 रोटियां हैं वो 1 रोटी उसे दे दे जिसके पास नहीं है। मेरे दोस्तों, आज खुशी क्या हो सकती है हम सब के लिए? आज हमारे लिए कामल खुशी क्या हो सकती है? हमारे लिए कामल खुशी ये हो सकती है कि जब इन दिनों में मेरी वजह से, आपकी वजह से, अगर मेरे कोई नेक काम की वजह से, मेरी खिदमत की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आती है और वो खुशी का वसीला सबब मैं बना हूं, आप बने हैं, उसके चेहरे पर खुशी को देखकर मुझे इत्मीनान मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, तो इससे मुराद है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। कि जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी आज सिखा रहे हैं कि जिसके पास नहीं है उसे दो, जिसके पास नहीं है उसे दो। तो ये खुशी हमारी भी हो सकती है। आज खुदा हम सबको भी, जब हमने खुशी की शम्मा को रोशन किया है, तो इससे मुराद नहीं है कि इतने ही शम्मा रोशन की थी तो इतने रह जाए, बल्कि इस शम्मा को अपने साथ लेकर जाना है। मुराद ये है कि इस शम्मा को बुझने नहीं देना। मेरी वजह से, मेरी खिदमत की वजह से, मेरे अच्छे काम की वजह से अगर किसी के चेहरे पर खुशी आती है, स्माइल आती है, वो मुस्कुराता है, तो इससे मुराद है कि मुझे सुकून मिल गया। वो मेरी कामल खुशी है, वो मेरी कामल खुशी है कि किसी के चेहरे पर खुशी जो मेरे वसीले से आई है वो मेरे लिए कामल खुशी बनती है। तो हमें मुकद्दस यूहन्ना खुदा का पाक कलाम भी आज उसी खुशी की तरफ लेकर जाता है, उसी खुशी की तरफ लेकर जाता है। और कभी भी अपने ईमान से ना भागे, अपने ईमान से डगमगाए ना, अपने ईमान से ना भागे। पलूस में कहा खुश रहो, फिर कहता दोबारा कहना खुश रहो, तो दुआ करो और खुदा की शुक्रगुजारी को अदा करो। पलूस के अल्फाज भी यही है कि खुश रहो, दोबारा कहता हूँ खुश रहो।
اور یہ خوشی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہی خوشی کی ہم تیاری کرنے کو ہے کہ جب چرواہوں کو یہ خوشخبری ملی تو انہیں گھبراہٹ، ڈر ختم ہو گیا، ڈرے ہوئے تھے، صدمے میں تھے وہ بھی، لیکن جیسے ہی خوشخبری انہیں ملتی ہے تو ان کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی مسیحا کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوشی آ رہی ہے، خوشی آ رہی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی خوشی آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آ رہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے کو تیار کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت فضل عطا کرے، تاکہ یہ خوشی نہ کہ صرف آج ہم گرجا گھر میں رہنے دیں، خدا کے پاک کلام کو بند کر دیں، بلکہ آج ہم خود خدا کی آواز بنیں اور اس خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے والے بنے۔ میں دعا کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت عطا کرے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔